Hello, welcome to the course on microwave engineering. Dear students, in the last class we have discussed about directional coupler. We have also discussed about microwave bends, microwave corners and microwave twists. And at the last we have discussed about microwave attenuator. Now in today's class we are going to discuss two more passive microwave components, which are the isolator and circulators. So let's start with the isolator. So basically what is isolator? So isolator is the two-port device which provides very small amount of attenuation for the transmission of signal from port 1 to port 2 and provide maximum attenuation for the signal for transmission from port 2 to port 1. ओके तो सपोज ये आइसोलेटर है, ये इसका पोर्ट 1 है, दिस इज द पोर्ट 1, करेक्ट, दिस इज द पोर्ट 1 लेट्स से, एंड दिस इज द पोर्ट 2, दिस इज पोर्ट 2. So it allows the energy to flow from port 1 to port 2 only, and it blocks the energy from port 2 to port 1. Okay, so we can say that isolator is a unidirectional device. Okay, and this is used when we would like to match source with the variable load. And this is the real-time picture of the isolator, and you can see there is a one arrow on the surface of this isolator, and this indicates the direction of energy flow. So this is, let's say, port 1, and here let's say there is a port 2, then it allows the energy to flow only from port 1 to 2, and it will block the energy in reverse direction, that is from port 2 to port 1. Now if you look at about the scattering matrix of this isolator, then it is a two-port device. So the scattering matrix would be 2 cross 2, which is the square matrix, and the coefficient of this matrix are S11, S12, S21 and S22. Now here this device only allows the energy to flow from port 1 to port 2. So S21 is equal to 1 and rest of the parameters are 0. This S12 is equal to 0 because it does not allow the energy to flow from port 2 to port 1. Okay. Now basically microwave engineering में ये जो microwave source है, the output amplitude of this source and frequency tends to fluctuate very significantly with the change in the load impedance. मतलब load impedance change होगा वैसे वैसे ये source का output amplitude and frequency fluctuate होगा. Okay, and this is due to the mismatch of the generator output to the load, and it ultimately results in the reflected wave from the load. मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से और मिसमैच की वजह से बिटवीन सोर्स एंड लोड, देयर इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम लोड टू सोर्स. ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव अगर आएगा, देन रिफ्लेक्टेड वेव माइट बी डैमेज द माइक्रोवेव सोर्स. तो अगर आपको ये रिफ्लेक्टेड वेव को ब्लॉक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में आइसोलेटर लगा दो. आइसोलेटर क्या करता है, सिर्फ पोर्ट 1 टू पोर्ट 2 में ही एनर्जी को फ्लो होने देता है. तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम माइक्रोवेव सोर्स टू लोड, बट एनी रिफ्लेक्टेड वेव दैट विल नॉट बी पास थ्रू दिस आइसोलेटर एंड रीच टू दिस सोर्स. क्लियर. तो प्रॉब्लम क्या था कि ये जो माइक्रोवेव सोर्स एंड लोड है, सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लोड, sometime this reflected wave might disturb this source or it might damage the source. तो अगर मुझे ये रिफ्लेक्टेड वेव को ब्लॉक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में आइसोलेटर लगा दो. सो ड्यू टू दैट आइसोलेटर व्हाट विल हैपन, इट विल ब्लॉक द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इट विल ऑलवेज allows the energy to flow from microwave source to load. Clear. So this is one of the application of the isolator. Now let's look at about the construction of isolator. वो कैसे एनर्जी को पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में ही वो फ्लो होने देता है और वो कैसे पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 एनर्जी ब्लॉक करता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली दिस फिगर इंडिकेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेटर. हियर दिस इज नोन एज अ रेजिस्टिव कार्ड. दिस इज द रेजिस्टिव कार्ड. बेसिकली at the input port there is a resistive card. Similarly
at this output port there is also resistive card. And this is the at the center there is a ferrite rod, and this is the mechanical 45 degrees twist. This is the mechanical 45 degree twist of the waveguide. Now here, first of all, we will understand what is the function of this resistive card. So resistive card is basically placed along the larger dimension of the rectangular waveguide, okay, so that it will absorb any wave whose plane of polarization is similar to plane of the resistive card. मतलब जिसका पोलराइजेशन, जो भी वेव यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे और उस जिसका पोलराइजेशन ये रेजिस्टिव कार्ड के पोलराइजेशन से मैच होता होगा, वो उसको ब्लॉक करेगा, ओके. एंड द रेजिस्टिव कार्ड डज नॉट एब्जॉर्ब एनी वेव हुज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन प्लेन. मतलब जो वेव का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. वेरी सिंपल है, समझ लो. फिर से रिपीट करता हूं. जो भी वेव हम इनपुट पोर्ट पे इंसिडेंट करेंगे और जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये रेजिस्टिव कार्ड के प्लेन के साथ मैच होता होगा, उसके सिमिलर होगा, मतलब वो रेजिस्टिव कार्ड वो वेव को वो एब्जॉर्ब करेगा. और जो वेव का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये रेजिस्टिव कार्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको वो पास होने देगा. मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरे पास T10 मोड में अप्लाई कर रहा हूँ. कौन सा मोड अप्लाई कर रहा हूँ? T10, विच इज अ डोमिनेंट मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ओके. तो ये T10 की इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके. सो यू कैन सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, okay. Yeah, resistive card is horizontally placed. This is vertically polarized. This electric field input wave is vertically polarized, where resistive card is horizontally placed. So we can say that the plane of polarization of this input wave, which is the T10 mode, is perpendicular to the plane of the resistive card. तो ये perpendicular है. So this T10 can easily pass through this resistive card. उसको absorb नहीं करेगा. Now this wave is अगेन पास थ्रू दिस 45 डिग्री ट्विस्ट. ये 45 डिग्री ट्विस्ट क्या करेगा, ये जो T10 मोड है मतलब उसके हो वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेव को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगा, ओके. एंटी क्लॉकवाइज वो ट्विस्ट करेगा 45 डिग्री. अगेन देन द वेव इज पास थ्रू द फेराइट रोड, एंड दिस फेराइट रोड विल twist the wave 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ये 45 डिग्री ट्विस्ट ने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था. ये फेराइट रोड उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ओके. सो अगेन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस वेव इज अगेन मतलब वर्टिकल. यहाँ पे वर्टिकल है बिकॉज इसने 45 डिग्री, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो आया था आउटपुट ऑफ द रेजिस्टिव कार्ड वो वर्टिकली पोलराइज था, ये वर्टिकल पोलराइज ही था. यहाँ पे उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट मिला, अगेन यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज मिला. तो ये दोनों ट्विस्ट कैंसिल हो गए. तो अगेन यहाँ पे वो वर्टिकली पोलराइज्ड है और वर्टिकली पोलराइज, और रेजिस्टिव कार्ड यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है. सो हियर द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस वेव is again perpendicular to the plane of the resistive card, so it will not absorb and it will reach to the output port. और उसको हमें ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द वर्टिकली पोलराइज एट द इनपुट. यहाँ पे ये जो मतलब ट्विस्ट है 45 डिग्री ट्विस्ट, उसने उसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया. देखो आप 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज. अगेन इट पास थ्रू दिस फेराइट रोड, फेराइट रोड ने उसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया 45 डिग्री रोटेट किया. तो वो अगेन जो ओरिजिनल था वही आ गया, मतलब वर्टिकली पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट कैन इजीली पास थ्रू दिस रेजिस्टिव कार्ड. नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मैंने ये पोर्ट पे एनर्जी अप्लाई की, सपोज हम अब ये एनर्जी फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2 सक्सेसफुली पास्ड. सपोज हम ये पोर्ट 2 पे एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा. सपोज हम T10 मोड इंसिडेंट कर रहे हैं, सपोज T10 मोड इंसिडेंट कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वर्टिकली पोलराइज होगी. एज यू कैन सी इन दैट फिगर, ये वर्टिकली पोलराइज्ड है.
सो अभी रेजिस्टिव कार्ड हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, तो ये जो मैंने एनर्जी अप्लाई की है TE10 मोड वेव बराबर है, उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड रेजिस्टिव कार्ड का प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, ओके, और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, तो ये रेजिस्टिव कार्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब ये इजीली पास हो जाएगा रेजिस्टिव कार्ड से, और यहाँ पे हमें TE10 मोड मिलेगा विच इज वर्टिकली पोलराइज, यू कैन सी ओवर हियर इज वर्टिकली पोलराइज, ओके, जो वर्टिकली था वो इजीली पास हो गया रेजिस्टिव कार्ड से, यहाँ पे पहुंच गया। अब ये फेराइट रोड क्या करेगा, उसको 45 डिग्री ट्विस्ट करेगा, करेक्ट, तो उसने 45 डिग्री ट्विस्ट किया, यू कैन सी, तो ये वर्टिकली पोलराइज था, उसको 45 डिग्री ट्विस्ट किया, किसने, फेराइट ने, क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया। अगेन ये जो सिग्नल यहाँ पे मिला विच इज 45 डिग्री ट्विस्टेड क्लॉकवाइज इज पास थ्रू द 45 डिग्री ट्विस्ट, ये ट्विस्ट क्या करेगा उसको, अगेन रिवर्स डायरेक्शन में उसको अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज वो ट्विस्ट करेगा, उसको क्या करेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगा, तो उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया, तो हमारा जो वेव है वो ऐसे 90 डिग्री टोटल क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाएगा। इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया, इसने भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया, तो टोटल ट्विस्टिंग कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब जो वर्टिकली पोलराइज वेव था इनपुट वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो गया, मतलब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव मिला। अब ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड रेजिस्टिव कार्ड का प्लेन दोनों पैरेलल हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस रेजिस्टिव कार्ड विल एब्जॉर्ब दी वेव, मतलब ये रेजिस्टिव कार्ड वेव को एब्जॉर्ब कर देगा और ये पोर्ट पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो यहां पे क्या होता है, जो वर्टिकली पोलराइज वेव हमने इंसिडेंट किया था, यहां पे पहुंचते पहुंचते वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो गया, और हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो गया मतलब उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रेजिस्टिव कार्ड के प्लेन के साथ वो सिमिलर हो गया, और ये पोर्ट पे आउटपुट 0 हो गया। ओके, तो हमने ये पोर्ट पे इनपुट अप्लाई किया तो यहाँ पे एनर्जी मिली, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी अप्लाई की तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं मिली। तो ये आइसोलेटर ने क्या किया, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी से एनर्जी को पोर्ट 1 टू पोर्ट 2 फ्लो करवाया, द एनर्जी फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 इज ब्लॉक्ड। समझ में आ गया, ओके। So here what I have explained is written over here, a TE10 wave passing from port 1 through the resistive card and is not attenuated, and after coming out of the card the wave gets shifted by 45 degree because of the twist in the anti-clockwise direction. Because of the ferrite rod it will again twist into clockwise direction, hence it will easily come out for port 2 with the same polarization at port 1 without any attenuation. Now suppose मैं TE10 मोड को पोर्ट 2 पे फेड करता हूँ, then it will pass from the resistive card initially which is placed near the port 2, okay, as I explained, and since the plane of polarization of the wave is perpendicular to the plane of the resistive card, now the wave get rotated by 45 degree due to Faraday's rotation in clockwise direction due to this ferrite rod, and further get rotated by 45 degree in clockwise direction due to the twisting action of the waveguide. Now the plane of polarization of the wave will be parallel to that of resistive card and it will be completely absorbed by the resistive card and output at port 1 will be 0. और बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो लिखा हुआ है फेराडे रोटेशन, मतलब ये जो फेराइट रोड जो वेव को 45 डिग्री रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फेराडे रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं, फेराडे रोटेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सर्क्यूलेटर। सो बेसिकली सर्क्यूलेटर is a multi-port microwave device, okay, and in circulator each terminal or each port is connected only to the next clockwise port or terminal. तो सपोज मेरे पास ये 3 पोर्ट सर्क्यूलेटर है, ये 3 पोर्ट सर्क्यूलेटर है, तो ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3 है। ओके, तो हमने 3 पोर्ट सर्क्यूलेटर का अभी एग्जांपल लिया है। तो क्या बोला है, ईच टर्मिनल मतलब ईच पोर्ट इज ओनली कनेक्टेड टू द नेक्स्ट क्लॉकवाइज पोर्ट, मतलब पोर्ट 1 इज कनेक्टेड टू पोर्ट 2 ओनली। इट मीन्स इफ आई अप्लाई इनपुट to the port 1 then only the signal will be available at port 2,
the signal will not available at port 3. Similarly, if we apply the input at port 2, then it is only connected to its next clockwise terminal. मतलब port 2 is connected to port 3. पोर्ट 2 का नेक्स्ट क्लॉकवाइज टर्मिनल कौन सा है? पोर्ट 3. मतलब ये दोनों कनेक्टेड होंगे, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. सिमिलरली पोर्ट 3 का नेक्स्ट क्लॉकवाइज टर्मिनल कौन सा है? पोर्ट 1. मतलब पोर्ट 1 इज कनेक्टेड टू पोर्ट 2. पोर्ट 2 इज कनेक्टेड टू इट्स नेक्स्ट क्लॉकवाइज टर्मिनल पोर्ट 3 एंड पोर्ट 3 इज कनेक्टेड टू पोर्ट 1. मतलब हम अगर एनर्जी पोर्ट 1 पे देंगे देन इट ओनली बी अवेलेबल एट पोर्ट 2. इट विल नॉट अवेलेबल एट पोर्ट 3. Similarly, if we apply signal at port 2, then it available to its next clockwise port, that is port 3, and at port 1 the output is 0. Similarly, if we apply energy at port 3, then it only available at port 1. Clear? Simple है. Now there is not any restriction on number of ports, but 4 ports are most commonly used. नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने भी हो सकते हैं. इट इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस. ओके, एंड जो मैंने अभी बताया वो कि फॉर 3 पोर्ट सर्क्यूलेटर अ सिग्नल अप्लाइड टू पोर्ट 1 ओनली कम्स आउट ऑफ पोर्ट 2. सिग्नल अप्लाइड टू पोर्ट 2 ओनली कम्स आउट ऑफ पोर्ट 3 एंड सिग्नल अप्लाइड टू पोर्ट 3 ओनली कम्स आउट ऑफ पोर्ट 1. क्लियर? अब ये क्लॉकवाइज सर्क्यूलेटर है, एंटी क्लॉकवाइज सर्क्यूलेटर भी हो सकता है. ओके, अब हम ये सर्क्यूलेटर के स्कैटरिंग मैट्रिक्स की बात करें. सो ये 3 पोर्ट डिवाइस है तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स बट ऑब्वियस 3x3 होगा और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 एंड S33. नाउ यहां पे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2. सो S21 इज इक्वल टू 1, S21 1 हो जाएगा. तो यहां पे देख सकते हो S21 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 3. सो S32 इज इक्वल टू 1. तो S32 1 है, आप देख सकते हो. सिमिलरली एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम पोर्ट 3 टू पोर्ट 1. सो S31 इज इक्वल टू 0. सॉरी, पोर्ट 3 दैट इज S13 इज इक्वल टू 0. सॉरी 1. S13 इज इक्वल टू 1. सो S13 इज इक्वल टू 1. ओके, बाकी के जो कोएफिशिएंट है दैट आर 0. क्लियर है? ओके, सो दिस इज स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ द सर्क्यूलेटर. नाउ लेट्स look at about the construction of circulator and how the energy applied at port 1 is only available at port 2 and not available at port 3 and port 4. So this is the construction of the circulator. This is the port 1, this is the port 2, this is the port 3 and this is the port 4. Now if we apply T10 mode at port 1, let's say if we apply T10 mode at port 1, then it will converted to the T11 mode due to the rectangular T11 mode due to the rectangular to circular transition. ये rectangular वेवगाइड है यहाँ पे और यहाँ पे ये circular वेवगाइड बन जाता है. ओके, हमें पता है कि ये सपोज सर्क्यूलेटर है तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो सकता है और यहाँ पे ये सर्कुलर बन जाता है. सो ड्यू टू दिस रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर ट्रांजिशन द T10 is converted into T11 mode. Okay, now its orientation of this T11 mode is perpendicular to port 3. So output at the port 3 is 0. सिंपल है क्योंकि ये T11 मोड जो मिला उसका ओरिएंटेशन पोर्ट 3 के परपेंडिकुलर है. नाउ दिस T11 मोड इज पास थ्रू दिस फेराइट. फेराइट क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड द फेराडे रोटेशन. मतलब सिग्नल विल rotated by 45 degree clockwise. So signal pass through the ferrite rod which rotates the signal by 45 degree in clockwise direction. Now once the signal is rotated by the 45 degree clockwise direction, it is out of phase with the port 4. यहाँ पे जो rotated signal मिलेगा that is out of phase with the port 4. तो port 4 से कुछ भी नहीं मिलेगा but it in phase with the port 2. So the signal at port 2 is exactly in phase with the port 1 and the signal will come out of at port 2. समझ में आ गया? फिर से समझाता हूं. पोर्ट 1 पे हमने T10 मोड अप्लाई किया. ड्यू टू दिस रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर ट्रांजिशन दिस मोड इज कन्वर्टेड इन T11 मोड एंड ये T11 मोड ये पोर्ट बी के
परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होगा तो यहाँ पे 0 आउटपुट मिलेगा. इट इज अगेन पास थ्रू द फेराइट रोड and the signal will gets rotated by 45 degree clockwise. Once the signal is rotated by the 45 degree clockwise, it is out of phase with the port 4. So output at the port 4 is 0, but this rotated signal is in phase with the port 2. So the output will be appear at this port 2. Similarly, if we apply the input at port 3, let's say, if we apply the T10 mode at port 3, let's say, T10 mode at port 3, then this its orientation is now perpendicular to the orientation of port 3. So the output at the port 3 is 0. Okay. Now the signal is passes through the ferrite rod. Signal is passes through the ferrite rod, and it will provide the 45 degree rotation. Now the signal orientation of this rotated signal is in phase with the orientation of port 4. Okay, so the input at port 3 is circulated to port 4. Similarly, if we apply the input at port 2, then output will be available at port 3, and we apply the input at port 4, then output will be available at port 1. Correct? Okay, so this is how this circulator works. Now let's look at about the one of the important application of the circulator. So circulator can be used as a duplexer. Circulator as a duplexer use हो सकता है. Now ये duplexer क्या है? So duplexer means same antenna can be used as a transmitter antenna as well as the receiver antenna. उसका मतलब होता है duplexer. So circulator can be used as a duplexer for radar antenna system. तो आप देख सकते हो कि ये मेरा 3 पोर्ट सर्क्यूलेटर है और उसके फर्स्ट पोर्ट पे हमने रडार का ट्रांसमीटर लगाया है और उसके थर्ड पोर्ट पे रिसीवर लगाया है रडार का और सेकंड पोर्ट पे हमने एंटेना लगाया. सो सेम एंटेना विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस एज वेल एज द रिसेप्शन पर्पस. तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेक्सर. नाउ अभी देखो, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सर्क्यूलेटर, दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर आइसोलेटेड. मतलब सपोज हमने ट्रांसमीटर ने कोई सिग्नल यहाँ पे भेजा, then it only coupled to the antenna only. वो सिर्फ पोर्ट 2 पे अवेलेबल होगा, पोर्ट 3 पे तो अवेलेबल होगा नहीं. मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर्स आर आइसोलेटेड. सिमिलरली सपोज कोई सिग्नल रिसीव हुआ है बाय दिस एंटेना, देन दिस सिग्नल रिसीव्ड एट पोर्ट 2 इज ओनली अवेलेबल एट पोर्ट 3. मतलब रिसीवर को ही मिलेगा, ये ट्रांसमीटर को नहीं मिलेगा. मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड and they can independently work. There is a no disturbance of the transmitter to receiver and receiver to transmitter. Okay, so this is how circulator can be used as a duplexer. So आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? In today's class we have discussed about 2 important component, passive component of the microwave system. One is the isolator, another is circulator. सो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.